قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام پیران پیر دستگیر غوث اعظم سردار اولیاء حضرت سیدنا سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شان و عظمت سے متعلق ہے، لہٰذا آپ حضرات آج کے پیغام کو بھی بغور سماعت کر لیں۔ پیغام اچھا لگے اس پیغام کو عام کیجئے۔ آج بھی میرے مطالعہ میں فتاوی مہریہ تھی تو ایک عبارت پر میری نظر پڑ گئی، ایسی عبارت جس کو پڑھ کر دل جھوم اٹھا اور طبیعت چاہی کہ اس عبارت کو آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا جائے۔ پھر سے میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ یہ جو فتاوی مہریہ ہے، اس کتاب کے اندر چشتیوں کی شان، چشتیوں کی آن، سنیوں کی پہچان، فاتح قادیانیت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتاوی جات کا مجموعہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ طریقت آپ کے مرشد اور پھر ان کے مرشد اس طرح اوپر ہوتا ہوا حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی صدیقی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں سے ہوتا ہوا غریب نواز تک پہنچتا ہے، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہمارے دیار میں جو سلسلہ کلیمیہ مشہور و معروف ہے، اسی کی ایک شاخ حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے۔ بہرحال تو آپ تمامی حضرات نے اکثر علماء کرام کی زبانی حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سنا ہوگا کہ غوث اعظم نے خود اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو یہ جو قول ہے آپ کا، یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہیں، اور الحمدللہ علماء اہل سنت اس بات کو، اس نظریہ کو بلا شک اور بلا تردد کے مانتے ہیں، اور چشتیوں کو تو اس بات پر کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اب آئیے، چشتی بزرگ، پیر، ولی کامل، عالم بے مثال، مناظر بے مثال، اولاد نبی، آل نبی پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے، آپ وہ سنیں۔ ان سے بھی اسی قول سے متعلق سوال کیا گیا کہ قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ سے جو ثابت کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہیں، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے پوری لمبی بحث کی، اور آپ نے یہی جو ہے نظریہ دیا کہ بلا شک اور بلا تردد حضرت غوث اعظم سردار اولیاء ہیں۔ اس کے بعد آپ بحث کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے، لیکن شیخنا عبد القادر رضی اللہ عنہ میں علاوہ مقام حاذہ کے اور وجوہ فضیلت بھی موجود تھے۔ یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سردار اولیاء ہیں، آپ کو بہت ساری ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو دیگر اولیاء کو حاصل نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ جو ہے
सरदार औलिया हैं, तो सिर्फ ये फजीलत आपको हासिल नहीं है कि आप जो है ये फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। सिर्फ ये फजीलत नहीं है, बल्कि कई फजीलतें हैं जो आपको मुमताज़ करती है, जो आपको तमाम औलिया का सरदार बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फरमाते हैं, चुनांचे सय्यदुना अब्दुल कादिर रदियल्लाहु अन्हु व सय्यदुना ख्वाजा निज़ामुद्दीन रदियल्लाहु अन्हु हर दो मकाम महबूबियत में, गौर से सुनिएगा, फरमाते हैं हर दो मकाम महबूबियत में शरीक हैं। क्या मतलब? जिस तरह हज़रत गौस आज़म महबूब सुबहानी हैं, उसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु महबूब इलाही हैं। अब फिर यहीं पर एक बात मैं ऐड कर दूं, इसी तरह हज़रत मखदूम अशरफ समनानी महबूब यज़दानी हैं। तो अब ये महबूब का लफ्ज़ देखकर, यानी महबूब सुबहानी, महबूब इलाही, महबूब यज़दानी, यानी मकाम महबूबियत पर ये तीनों अल्लाह के वली फाइज़ हैं। तो कुछ लोग ये शोशा, ये गोशा, ये जो है वहम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं या किए भी होंगे कि सिर्फ़ हज़रत गौस आज़म मकाम महबूबियत पर फाइज़ नहीं हैं, बल्कि और भी दीगर औलिया कराम हैं, लिहाजा वो सरदार औलिया नहीं हैं। तो ये अगर किसी ने नज़रिया दिया है या देने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको जो है राह रास्त से भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये उसका बोकस जो है वहम है और ये वाहियात है, क्योंकि जिस तरह रसूलों में भी एक दूसरे को फजीलत है, और ये कुरान से साबित है कि बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत हासिल है, इसी तरह मकाम महबूबियत पर अगर कुछ औलिया कराम फाइज़ हैं, तो उन महबूबों में भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत हासिल है। लिहाजा जब अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि तमाम औलिया के सरदार जो हैं वो हज़रत गौस आज़म रदी अल्लाह अन्हु हैं, तो फिर मानने में हमें और आपको क्या जाता है। और यही पैगाम सिलसिला चिश्तिया के बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने दिया है, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। और ख़ुद पीर मेहर अली शाह चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो ख़ुद सिलसिला चिश्तिया के एक बहुत बड़े मुबल्लिग़ और सिलसिला चिश्तिया की शान है, आन है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ सिलसिला चिश्तिया नहीं, बल्कि अहले सुन्नत की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमा रहे, क्या फरमाते, देखिए गौर से सुनिएगा। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल कादिर रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह अन्हु हर दो मकाम महबूबियत में शरीक हैं, मगर हस्बे तसरीह औरंगाबादी। अब सुनिएगा, हज़रत पीर मेहर अली शाह चिश्ती किन से दलील ला रहे हैं? हस्बे तसरीह औरंगाबादी, यानी हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाह जहांबादी चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा और मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु से दलील ला रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने बुज़ुर्गों को भूल गए हैं, उनकी तालीमात को भूल गए हैं, उनकी किताबों को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए पता नहीं है कि हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने हमें कैसा कैसा नज़रिया दिया है, कैसा कैसा अक़ीदा दिया है, कैसी कैसी किताबें दी हैं, कैसे कैसे जो है हम सबको तबलीग करके हमारा ईमान बचा कर के वो गए हैं, लेकिन लोग पढ़ने से रहे। बहरहाल, तो हज़रत पीर मेहर अली शाह चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मगर हस्बे तसरीह औरंगाबादी,
यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तसरीहात के मुताबिक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी रज़ी अल्लाह अन्हु सय्यदुना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुस्तफ़ीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? यानी हज़रत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी फैज़ मिला है, तो हज़रत सय्यदुना गौस आज़म सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला है। वो ऐसा दरबार है कि वहाँ से भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को फैज़ मिल रहा है, फैज़ मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए फरमाते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात और उनकी तसरीहात के मुताबिक ये बात साबित है कि हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुस्तफ़ीद हैं। क्या फरमाते हैं कि निज़ामुल क़ुलूब मुलाहिज़ा हो। निज़ामुल क़ुलूब ये क्या है? निज़ामुल क़ुलूब जो है हज़रत सय्यदुना निज़ामुद्दीन औरंगाबादी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है। इसको पढ़ना चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा किसी के पास अगर ये किताब मौजूद हो, निज़ामुल क़ुलूब, चाहे फ़ारसी में हो या फिर उर्दू में हो, वो जो है कमेंट बॉक्स में ये बात बता दे। इंशाअल्लाह ताला अगर वो किताब असल सूरत में है और अब तक उसका तर्जमा नहीं हुआ है तो हम लोग उसका तर्जमा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला और उसको शाये की जाएगी। तो पीर मेहर अली शाह चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि देखिए निज़ामुल क़ुलूब साबित हुआ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब निज़ामुल क़ुलूब हज़रत पीर मेहर अली शाह चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताला में थी और वहाँ से आप दलील ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर आप इस किताब का अगर मुताला करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। सारी बातें बताई नहीं जा सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो पीर मेहर अली शाह चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे ये भी लिखा है कि हज़रत सय्यदुना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो महबूबियत है वो आलमगीर है और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो महबूबियत है वो आलमगीर नहीं है। लिहाजा यहाँ पर बराबरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत सय्यदुना अब्दुल कादिर जीलानी से मुस्तफ़ीद हैं तो फिर हज़रत महबूब यज़दानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे? जी हाँ, ख़ुद लताइफ़ अशरफ़ी का आप मुताला करें तो ख़ुद हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिश्ती वो ख़ुद भी हज़रत सरकार सय्यदुना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरदार औलिया होने के कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मौका मिला तो लताइफ़ अशरफ़ी से भी ये बात आपको बताई जाएगी। बहरहाल हम तमाम चिश्ती बिरादरान को ये कहना चाहेंगे कि यही चिश्ती बुज़ुर्गों का नज़रिया है, यही चिश्ती बुज़ुर्गों की तबलीग है और उनकी किताबों में यही बात दर्ज है कि हज़रत सय्यदुना गौस आज़म सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सरदार औलिया हैं। तो हवाला नोट कर लीजिए। किताब का नाम फतावा महरिया, सफ़ा नंबर 62 यानी 62 के अंदर ये इबारत मौजूद है और ये पूरी बहस जो है वो और भी थोड़ी लंबी है। आप चाहें तो इस पूरी बहस का मुताला इस किताब को लोड करके नेट पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं और फैज़याब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को शाद रखे, आबाद रखे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.